गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक चैप्टर पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें ये थर्मोडायनेमिक चैप्टर में एक्सेस थर्मोडायनेमिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है। मगर उससे पहले हम कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जैसे कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इनकी बेसिक टर्म्स और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन कैसे होता है, इन सभी के बारे में पहले हम जान लेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सेस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज़ द एनर्जी that is available to do useful work. That means it is the energy required for useful work. That means Gibbs free energy is the energy that is available to do useful work. If the Gibbs free energy is less than zero, change in a Gibbs free energy is less than zero, then the reaction will take place spontaneously. That means it is a exergonic reactions, and the reaction, if the grad G value, that means the change in a Gibbs free energy is greater than zero, the reaction will not take place spontaneous, and this reaction is a endergonic reactions. इस स्लाइड में हमने बताया है कि हाउ आर एंट्रोपी एंड एंथैल्पी आर रिलेटेड. दैट मीन हियर वी हैव टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द Gibbs free energy and enthalpy as well as with entropy. Grad G naught is equal to grad H naught minus T grad S naught. Grad G naught is the Gibbs free energy, grad H naught is the enthalpy, T is the temperature in Kelvin, and grad S naught is the entropy. Here we discuss about the enthalpy. एंथैल्पी इज़ नथिंग बट द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम. अगर एखादी सिस्टम में टोटल अमाउंट ऑफ हीट involved is known as a enthalpy. Here we have to define the enthalpy. The precise definition of enthalpy, H, is the sum of internal energy plus the product of pressure and volumes. That means H is equal to U plus PV. Here H is the enthalpy, U is the internal energy, PV the pressure, and V be the volume. It is the sum of internal energy and pressure, product of pressure and volume. Now in the next slide, the change in enthalpy grad H is therefore grad H is equal to grad U plus grad P grad V, where delta symbol or this triangular symbol indicates that the change, the pressure is held constant. The above equation is better shown as the grad H is equal to grad U plus P grad V. However, for constant pressure, the change in enthalpy is simply the heat transferred. However, for a constant pressure, if the pressure is a constant, then the change in enthalpy, that means grad H, is always equal to the heat transferred. So grad H is equal to Q. Q means heat absorbed or evolved, that means heat transferred. Now the third term is entropy. What is meant by the entropy? Entropy is a measure of a system thermal energy per unit temperature that is unavailable for doing useful work, because work is obtained from the order molecular motions. The amount of entropy is also a measure of molecular disorder or randomness of a system. That means entropy is a measure of disorderness or randomness of a system. Here there are three terms are discussed here. First one is the Gibbs free energy. Gibbs free energy is the energy which is useful to do some work.
Next, enthalpy, it is the total heat content of a system, and entropy is the measure of a disorderness or a randomness of a system. Now, after that we have to discuss about the ideal solution. What is meant by the ideal solution? ये ideal solution क्या होता है और real solution क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. An ideal solution is a mixture in which the molecule of different phases are distinguishable. However, unlike the ideal gas, the molecule in an ideal solution exert a force on one another. When these forces are same for all the molecule independent of a species, then a solution is said to be a ideal. Suppose हमने एक बीकर लिया, उसमें दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन लिए, दो डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट लिए और उनको मिक्स कर दिया. तो सपोज वो दो टाइप के सॉल्वेंट, एक ए सॉल्वेंट है और दूसरा बी सॉल्वेंट है. तो ए सॉल्वेंट में होने वाले जो पार्टिकल रहेंगे, ए सॉल्वेंट में होने वाले पार्टिकल, तो उनका इंटरेक्शन ए ऐसा इंटरेक्शन रहेगा. बी सॉल्वेंट में होने वाले पार्टिकल का इंटरेक्शन रहेगा बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, नहीं तो रिपल्शन रहेगा, जो भी रहेगा उनका जो इंटरेक्शन रहेगा बी टाइप का रहेगा. जब हम दोनों सॉल्वेंट को एक बीकर में मिक्स कर रहे हैं, तब वो दोनों सॉल्वेंट मिक्स हो जाएंगे और अब थर्ड टाइप की इंटरेक्शन, दैट मीन्स ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर आल्सो एग्जिस्ट इन दैट सॉल्यूशन. अगर वो तीनों भी इंटरेक्शन सेम रहेंगी, तब उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. Now, if we take the simplest definition of an ideal solution, then it is described as a homogeneous solution where the interaction between the molecule of component, that means solute and solvent, is exactly the same to the interaction between the molecule of each component itself. This types of solution follows the Raoult's law at almost all level of concentration and temperature. तो अभी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखने वाले हैं. तो एन आइडियल सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम हैज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर कंपोनेंट. दैट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो नियरली सिमिलर होती है प्योर कंपोनेंट जैसी. सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ आर: the enthalpy of a solution is 0. If the enthalpy of a solution get closer to 0, it is more likely to show an ideal behavior. That means a gradient of a mixing, enthalpy of a mixture or enthalpy of a mixing for ideal solution is always equal to 0. After that, the volume of a mixing is also 0. That means grad H of a mix is equal to 0 and grad V of a mix is equal to 0. अभी ये ग्रेड H क्या है और ग्रेड V क्या है? तो हम ग्रेड H एंथैल्पी चेंज, अगर हम दो सॉल्वेंट को और दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, तब एंथैल्पी चेंज होगा वो 0 रहेगा. अगर हमने दो सॉल्यूशन मिक्स किए तो उसका चेंज इन वॉल्यूम वो भी 0 रहेगा, तब और रिजल्टेंट सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं. अभी हम बात करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है. द सॉल्यूशन दैट ओबेज द राउल लॉ ओवर अ होल कलेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन. दैट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो राउल्स लॉ ओबे करता है. द सॉल्यूशन दैट ओबेज द राउल्स लॉ. द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट फॉर, ये भी हमने पढ़ा था अभी, ग्रेड H ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन. दैट मीन्स दिस implies that the heat is neither absorbed or nor evolved during the mixing of component in a solution. अगर दो सॉल्यूशन हम मिक्स करके उसका एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन से ना हीट एब्सॉर्ब होगी ना इवॉल्व होगी, तभी वो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा
उसे हम आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अगर हमने वॉल्यूम के बारे में जैसे ग्रेड वी, the volume of mixing of a pure component for the formation of solution is also zero, then that means mathematically it is written as grad v of mix is equal to 0। अगर हमने 5 ml एक सॉल्यूशन लिया और 5 ml दूसरा सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो अगर 10 ml ही बनता है तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एंटायर सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हमने दिखाए हैं। जो पहला सॉल्यूशन है वो ए सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन जो है वो बी सॉल्यूशन। ये ए सॉल्यूशन में ए टाइप की इंटरेक्शन होंगी, बी सॉल्यूशन में जो पार्टिकल रहेंगे उनकी बी टाइप की इंटरेक्शन रहेंगी। अगर वो दोनों भी सॉल्यूशन हमने एक बीकर में डाल दिए और दोनों को मिला लिया, तब हमें थर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर एग्जिस्ट इन दैट सॉल्यूशंस। और हमको दिखेंगे कि ये तीसरी टाइप की इंटरेक्शन ये थर्ड जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसमें दिख रही ए डैश बी टाइप। That means there are 3 type of interactions are present in the resultant solution, A dash A, B dash B and A dash B. These all interaction, if these all interactions are equivalent to each other, then such a solution is called as the ideal solution. In case of pure component, तो यहाँ पे दिया गया है in case of pure component the intermolecular attractive interaction is of AA and BB type. In case of a binary solution, the intermolecular attractive interaction is of AA, BB and AB type. अगर हम सेपरेट सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ए सॉल्यूशन में AA टाइप की इंटरेक्शन दिखेंगी, बी सॉल्यूशन में BB टाइप की इंटरेक्शन दिखेंगी। अगर वो दोनों सॉल्यूशन को एक साथ मिला लेती है तब हमें ये 3 टाइप की इंटरेक्शन दिखेंगी, AA, BB and AB type. When the intermolecular attractive forces between the A dash A, B dash B type are nearly equivalent, ये दोनों भी जो इंटरेक्शन है A इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन are nearly equivalent to the intermolecular attractive forces between A, B, it result in the formation of a ideal solution। तो इस प्रकार से हमने जो बेसिक टर्म्स है थर्मोडायनेमिक चैप्टर पढ़ने के पहले हमें बेसिक टर्म्स के बारे में जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको उन सभी बेसिक टर्म्स को क्लियर आपको समझाने का प्रयास किया है। आप कोई अच्छी सी किताब पढ़ के भी ये टर्म्स और से समझ सकते हैं या इंटरनेट का उपयोग करके भी आप अच्छे से आपकी जो थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड बेसिक टर्म्स है वो पहले क्लियर कीजिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अभी एक्सेस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा हार्ड है पोर्शन, मगर जब तक आपकी बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होती तब तक के आपको वो थर्मोडायनेमिक एक्सेस फंक्शन के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसलिए आपकी पहली कोशिश यही रहनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनके जो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में जानने के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और यह वीडियो मैं गूगल फॉर्म के माध्यम से आपके पास पहुँचाऊँगा, तो आप इस गूगल फॉर्म में दिए गए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करके अपनी प्रेजेंटी भी क्लियर कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो अभी एक्सेस थर्मोडायनेमिक फंक्शन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अधिक और अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।